মই কাহাৰুল আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জেনজিক চেলেঞ্জ কৰিছে এইবাৰ কংগনা ৰানাৱতে। CJPৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসক লক্ষ্য কৰি কংগনা ৰানাৱতৰ মন্তব্য, তোমাৰ বয়সত মই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা জিকিছিলোঁ, তুমি বেকাৰ পাপি, এইবুলি ইনষ্টাগ্ৰামত কটাক্ষ কৰিছে কংগনা ৰানাৱতে। আৰু সৌৰভ দাসেও কংগনা ৰানাৱতক পূৰ্বে সমালোচনা কৰিছিল। বিজেপিয়েও গুৰুত্ব নিদিয়ে কংগনা ৰানাৱতক। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছত সৌৰভ আৰু কংগনাৰ ব্যাপক যুঁজ চলিছে। আৰু দুয়োপক্ষৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া অব্যাহত আছে সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্ক। জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জেনজিক চেলেঞ্জ কৰিছে কংগনা ৰানাৱতে। আৰু CJPৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসক লক্ষ্য কৰি কংগনা ৰানাৱতৰ মন্তব্য, তোমাৰ বয়সত মই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা জিকিছিলোঁ, তুমি বেকাৰ পাপি বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত কটাক্ষ কৰিছে কংগনা ৰানাৱতে। সৌৰভ দাসে পূৰ্বে কংগনাৰ মন্তব্যৰ কৰিছিল সমালোচনা। আমি জনাই আছোঁ বিজেপিয়েও গুৰুত্ব নিদিয়ে কংগনা ৰানাৱতক, এইবুলি মন্তব্য কৰিছিল। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলত সৌৰভৰ বয়স আৰু পৰিচয়ক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছিল কংগনা ৰানাৱতে। ষ্টৰীত এনেধৰণে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক যুঁজ চলা দেখা পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দুয়োপক্ষৰ মন্তব্যক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ বিতৰ্ক। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই ষ্টৰীটো, যিধৰণে আচলতে কংগনা ৰানাৱতক সমালোচনা কৰিছিল। আৰু তাৰ উপৰিও কংগনা ৰানাৱতেও সমালোচনা কৰিছে সৌৰভ দাসক। এনেধৰণে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত জেনজিক চেলেঞ্জ কৰিছে কংগনা ৰানাৱতে, তোমাৰ বয়সত মই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ, তুমি সেইখিনি বয়সত কি কৰিছা বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰে। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। কংগনা ৰানাৱত আৰু CJPৰ বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যমত। আৰু CJP আৰু কংগনা ৰানাৱতৰ মাজত তীব্ৰ বিতৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাৱত আৰু কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি CJPৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বাকযুদ্ধ। জেনজি আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনক লৈ কংগনাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে সৌৰভ দাসে কংগনাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত কংগনা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীৰ জৰিয়তে সৌৰভ দাসক লক্ষ্য কৰি ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছিল। কংগনাই দাবী কৰিছিল, তোমাৰ বয়সত মই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিলোঁ। লগতে তেওঁ সৌৰভ দাসক বেকাৰ আৰু এক প্ৰকাৰে পাপি বুলিও কটাক্ষ কৰিছে। সৌৰভ দাসৰ বয়স, ছাত্ৰ হিচাপে পৰিচয় আৰু কৰ্ম জীৱনক লৈও প্ৰশ্ন কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ কংগনা ৰানাৱতে। ইয়াৰ পূৰ্বে সৌৰভ দাসে কংগনাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কৈছিল যে কংগনাক তেওঁৰ নিজৰ দল অৰ্থাৎ বিজেপি দলেও গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ মন্তব্যক গুৰুত্ব সহকাৰে নলয়। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে। CJP আৰু কংগনা ৰানাৱতৰ মাজৰ এই বাকযুদ্ধ এতিয়া নতুন ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বিতৰ্কৰ ৰূপ লৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যি ষ্টৰী কংগনা ৰানাৱতে সৌৰভ দাসৰ ষ্টৰী লগাইছিল। আৰু এই ষ্টৰীৰ জৰিয়তে কংগনা ৰানাৱতে সমালোচনা কৰিছিল। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যম যোগে তীব্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। কংগনা ৰানাৱতে আজি স্পষ্টীকৰণ দিছে, সেই স্পষ্টীকৰণ মই শুনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए
और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, वाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी disciplined. Why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज़ इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर